The other two aircrafts are Wing Commander Karan Deo with Flight Lieutenant A.S. Dinsa and Squadron Leader H.J. Singh with Squadron Leader Shobit Mishra. Peeling outwards and upwards. Trinetra. Trinetra formation. राजपथ के आकाश में इस समय 3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स विजय फॉर्मेशन में तिरंगे के रंगों को राजपथ के आकाश में रंगते हुए। इस फॉर्मेशन की कमान ग्रुप कैप्टन गिरीश कुमार ने संभाली है, उनके साथ विंग कमांडर स्नेहा कुलकर्णी और विंग कमांडर वाई श्रीधर तिरंगे के रंगों की छटा को बिखेरते हुए। Colors of the national flag coloring the sky, and now everybody, we will hold our breath for the culmination of the parade as a single Rafale aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour, carrying out a vertical Charlie. Absolutely gravity-defying aircraft piloted by Group Captain Harkirat Singh, Shaurya Chakra. हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज को हम नई वीडियो के साथ, और आज की हमारी वीडियो का टाइटल है ऑसम एरोबैक्स रैप्ट स्पेक्टेटर्स रिपब्लिक डे 2021। दोस्तों ये वीडियो मिली है हमें डीडी नेशनल से, यानी दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल से। दोस्तों आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस मिलती रहें। अगर आपको चैनल का लिंक चाहिए तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आकाश में देखेंगे रुद्र फॉर्मेशन। इसमें एक डकोटा हवाई जहाज और उसके साथ 2 मी-17 हेलीकॉप्टर्स होंगे। ये विग फॉर्मेशन में होंगे। इस फॉर्मेशन की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन मेनन और विंग कमांडर एस गहलोत ने, जो वायुसेना की हेरिटेज फ्लाइट के डकोटा को उड़ा रहे हैं। 2 हेलीकॉप्टर्स में विंग कमांडर मुकुल खरे और स्क्वाड्रन लीडर राठौर हैं। सैनिकों और साजो सामान लाने ले जाने के लिए डकोटा ने 1947 में कश्मीर घाटी और 1971 में भारत पाक युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। डकोटा विमान, 2 हेलीकॉप्टर्स, ये फॉर्मेशन ग्रुप कैप्टन मेनन और विंग कमांडर एस गहलोत की कमान में रुद्र फॉर्मेशन। The diffused glow of a chilly January morning, witnessing along with all of us present here, the first formation of the flypast, the Rudra formation. खतरनाक क्या The Rudra formation will be followed by the Sudarshan formation, consisting of 1 Chinook and 2 Mi-17 helicopters in big formation. The Chinook is a heavy-lift twin-rotor helicopter which has enhanced the Indian Air Force's lift capability across a range of military and HATR missions. The formation will be flying at 160 kilometers per hour at a height of 60 meters above all of us. Formation is led by Group Captain Siddharth Rawat, Commanding Officer 126 Helicopter Flight. The other formation members are Wing Commander Rohit Singh Thakur and Wing Commander Nikhil Mehrotra of 129 Helicopter Unit. सुदर्शन के बाद रक्षक फॉर्मेशन, हेलीकॉप्टर्स, 1 मी-35 और 4 अपाचे हेलीकॉप्टर्स विग फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए। इस फॉर्मेशन की कमान ग्रुप कैप्टन राजशेखर रेड्डी ने संभाली है। ग्रुप कैप्टन इंदुमीत सिंह, विंग कमांडर प्रवीण सारथी, विंग कमांडर आनंद कुमार यादव और विंग कमांडर मुनीत डोगरा इस फॉर्मेशन में उनके साथ। रफ्तार है 180 किलोमीटर और ज़मीन से सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए।
pace, the speed, the heartbeat building up ये कॉम्बिनेशन बहुत as मस्त the लगता Indian है Air मुझे, Force मतलब एक आगे फिर दूसरे पीछे फिर presents दूसरे its पीछे. fly past. Beautiful images captured by a specially placed cameras by Team Doordarshan. And following the Rakshak formation will be the Bhim formation, comprising 3 C-130J aircraft in big formation. The C-130J Flying is the past special ops Bhim aircraft of the Indian Air formation. Force and is capable of operating from remote places with short and semi-prepared surfaces. The aircraft is used for covert insertion, special airdrop and air-landed missions, base defense, casualty evacuation and of course humanitarian relief in remote areas. Formation led by Group Captain Mandeep Chahal, Commanding Officer of 87 Squadron. The captains of the other two aircraft are Wing Commander Ankit Raj Singh and Wing Commander Naveen Chand. उमंग और जोश बढ़ता हुआ और भीम के बाद निगाहें आकाश की ओर, तो आकाश में भी निगाहें. नेत्र फॉर्मेशन यानी आकाश में निगाह, ये हवा में एक ऐसा अर्ली वार्निंग रेडार है जो 400 किलोमीटर तक के इलाके में दुश्मन की हरकत को भांपकर लक्ष्य को भेदने का निर्देश दे सकता है. इस सिस्टम को डीआरडीओ ने विकसित किया है. नेत्र विमान के दोनों ओर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान हैं. इस AEWNC को ग्रुप कैप्टन पी सिंह उड़ा रहे हैं. सुखोई 30 विमान में विंग कमांडर वी भोज, उनके साथ स्क्वाड्रन लीडर टी अली, और दूसरे सुखोई 30 विमान में विंग कमांडर एस अधिकारी, उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट धीरज यादव. 300 मीटर की ऊंचाई और 550 किलोमीटर की रफ्तार. And now we await the Garuda formation. Flying at a height of 550 kilometers per hour, at a height of 300 meters above the ground level. The speed slowly increasing. The Garud formation will comprise one C-17 Globemaster with 2 MiG-29s and 2 Su-30 MKI aircraft in big formation. The C-17 is a heavy-lift, long-range strategic airlift aircraft. C-17 captained by Group Captain Pranav Sisodia, Commanding Officer of 81 Squadron. Flanking him on 2 MiG-29 aircrafts piloted by Group Captain Kapildeep Singh, Commanding Officer of 223 Squadron, and his Flight Commander, Wing Commander Ankur Hakim. The outermost tier had 2 Su-30 MKI aircraft piloted by Group Captain GBS Chauhan, Vayu Seva Medal, Commanding Officer of 31 Squadron, with Squadron Leader GS Dutt and Wing Commander Ravi Huda with Flight Lieutenant Prakhar Kumar. रोमांच और बढ़ता हुआ और गणतंत्र दिवस परेड पर पहली बार रफाल, एक रफाल, 2 जैगुआर और 2 MiG-29 एकलव्य फॉर्मेशन में. फॉर्मेशन का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया कर रहे हैं. फॉर्मेशन में उनके साथ हैं विंग कमांडर वरिंदर सैनी, विंग कमांडर आकाश चेची, ग्रुप कैप्टन जीजो जोस ओविलल और विंग कमांडर नितिन नागरकोटी. 300 मीटर की ऊंचाई और रफ्तार 780 किलोमीटर प्रति घंटा. एकलव्य फॉर्मेशन ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया की कमान में. The limitlessness of the sky setting the tone for the limitless passion, expertise and skill of our pilots from the Indian Air Force. And now the Trinetra formation is going to come up, comprising 3 Su-30 MKIs. The 3 aircrafts as they come up will spit outwards and upwards, forming a trishul in the sky. Squadron Leader R.C. Kulkarni, the captains of the other 2 aircraft, the Wing Commander Karandev with Flight of A.S. and Squadron Leader... The formation is led by Group Captain A.K. Mishra, Commanding Officer of Squadron Leader R.C. Kulkarni. The captains of the other 2 aircrafts are Wing Commander Karandev with Flight Lieutenant A.S. Dinsa and Squadron Leader H.J. Singh with Squadron Leader Shobit Mishra.
ओह ये बढ़िया है भाई। Peeling outwards and upwards. Trinetra. त्रिनेत्र। त्रिनेत्र फॉर्मेशन, वारंगल के हेलीकॉप्टर राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों को बिखेरेंगे। राजपथ के आकाश में इस समय 3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स विजय फॉर्मेशन में तिरंगे के रंगों को राजपथ के आकाश में रंगते हुए। इस फॉर्मेशन की कमान ग्रुप कैप्टन गिरीश कुमार ने विजय संभाली है। उनके फॉर्मेशन। साथ अच्छा ये विंग कमांडर स्नेहा कुलकर्णी और विंग कारगिल वाली लड़ाई कमांडर वाई टाइम की श्रीधर बात हो रही है। विजय फॉर्मेशन तिरंगे के रंगों की छटा को बिखेरते हुए। कंफर्म नहीं है। Colors of the national flag coloring the sky. And now, everybody, we will hold our breath for the culmination of the parade as a single Rafale aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour, carrying out a vertical Charlie. राफेल। ओ भाई साहब क्या टर्न। Absolutely gravity-defying खतरनाक, aircraft piloted by खतरनाक। Group Captain Harkirat Singh, Shaurya Chakra, commanding officer of 17th Squadron, with squadron leader Kisle Kant. Nava Sprisham Deeptam. तो गाइज आपने देखा यार, एक के बाद एक सभी हमारे प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स और जितने भी फाइटिंग क्राफ्ट थे वो सभी ने अपने अपने प्रदर्शन किए। और जो लास्ट सबसे खतरनाक जो था ना यार, वो राफेल का। मतलब यार जो टर्निंग, मतलब यार ऊपर से लग रहा था कि यार उसने अपनी राफेल को के इंजन को बंद कर दिया। मतलब वैसे टर्न खा लगा था एक टाइम यार गिर जाएगी वो, लेकिन फिर से उसने यार स्टार्ट किया और फिर जो टर्न लिया वो तो बहुत ही खतरनाक था यार। और जो इसकी यार साउंड होती है ना वो करके आने वाली, वो तो यार मतलब लगता है कि सुन के क्या सुकून मिलता है, मज़ा आ जाता है यार मतलब। और अगर हम बात करें यार ना, मतलब कि एक के बाद एक जो आर्थ हेलीकॉप्टर्स और उनके पीछे जो कॉम्बिनेशन था उनका ना यार, मतलब एक यहाँ फिर एक यहाँ फिर एक यहाँ फिर एक यहाँ, वो बहुत ही यार मुझे बढ़िया लगता है। क्योंकि यार मतलब क्या कमाल का उनका कॉम्बिनेशन है कि अगर हल्का सा यार, हालांकि हमको यहाँ से लगता है कि काफ़ी क्लोज हैं वो लोग, नहीं थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं, पर खतरनाक तो है क्योंकि इतनी ऊंचाई पे इतनी रफ्तार के साथ कॉम्बिनेशन बैठा ना यार, इसके लिए तो सल्यूट है यार, सल्यूट है। तो दोस्तों यार ये वीडियो तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ हमें ये भी बताइएगा कि आपको और भी किसी वीडियो पे रिएक्शन चाहिए या कैसी वीडियो पे रिएक्शन चाहिए, कैसी वीडियो पे रिएक्शन चाहते हैं, ये सब हमें बताइए कमेंट करके। आज की वीडियो में समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।